Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Student, in our last previous two lecture, we could be able to complete the summary of chapter 7 which was titled as The Last Leaf written by O. Henry. In this story we came to know that one of the girl who created a negativity in her mind, who created a wrong perception in her mind that she would die with falling off last leaf on the creeper, which was there in front of her. Now, the same last leaf painted by one of the artists on the wall could be able to save the life of that little girl. So, this type of summary we came to know. We read from this chapter. Today, in this lecture, we shall try to discuss the question answer. So, let's start. Here are the questions. I read first question. What is Johnson's illness? Johnsy की बीमारी क्या है? What can cure her? Cure means treat, इलाज करना. क्या चीज़ उसका इलाज कर सकती है? The medicine or the willingness to live. यानी किस चीज़ से उसका इलाज हो सकता है? दवाई से या जीने की चाहत से. Now, answer of this question is like that. Firstly, the answer of first part. What type of disease, what type of illness Johnsy has? Johnsy has a disease of pneumonia. Now, in this disease, a person's lungs get infected. Because of that, person becomes uncomfortable while taking proper breathing. So, due to that reason, the person can't get proper supply of oxygen in his or her lungs. And because of that reason, due to lack of, we can say, oxygen, whatever the blood which a person supply in lungs, that blood can't be purified due to lack of oxygen in a proper way, and the person lose his or her health. And because of that reason, after some time, the death of a person may take place if proper treatment is not done on the part of the doctor. So that is the disease of pneumonia. ये निमोनिया की बीमारी है जिसमें आदमी के लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उस इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति ठीक ढंग से सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लंग्स में, जिसके कारण लंग्स में जो ब्लड जाता है वो ठीक तरह से प्योरीफाई नहीं हो पाता और उसके कारण वीकनेस आ जाती है. और अगर ट्रीटमेंट नहीं होता व्यक्ति का तो वो जान से हाथ भी धो बैठ सकता है. सो दैट इज द डिजीज ऑफ निमोनिया. सो Johnsy has a such type of disease which was known as pneumonia. Johnsy को यही शिकायत थी, यही समस्या थी, उसको निमोनिया की बीमारी थी. उस बीमारी के कारण जो है, she remains in her bed all the time by watching outside of the window, and she gazed one of the ivy creeper which was
there on the wall. And because of watching that ivy creeper, she created a wrong perception. She created a negativity in her mind that she would die with falling off last leaf from that ivy creeper. Actually, this was the natural process, and due to that natural process, the leaves of that creeper were falling one after the other due to autumn season. In autumn season, most of the plants leave their leaves. बहुत सारे प्लांट्स जो है वो अपनी पत्तियां खो देते हैं ऑटम सीजन के दौरान, पतझड़ ऋतु के दौरान। और इस आइवी क्रीपर की भी पत्तियां जो है वो ऑटम सीजन के कारण और तेज हवा चलने के कारण एक के बाद एक गिरती जा रही थी। बट जॉन्सी हु हैड प्रॉब्लम ऑफ निमोनिया, शी स्टार्टेड टू थिंक दैट देयर वाज अ कनेक्शन in her disease, between her disease and the falling of leaves from that ivy creeper which she was watching all the time. लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस था कि पतझड़ ऋतु में पत्ते जो है गिर रहे थे, हर पौधे के गिरते हैं। उसके बाद स्प्रिंग सीजन जैसे ही आती है तो नए पत्ते पनप जाते हैं, उग जाते हैं पेड़ की टहनियों पर। लेकिन उन गिरती हुई पत्तियों के कारण जॉन्सी अपने बिस्तर पर लेटी लेटी अपने दिमाग में एक क्या नाम है रॉन्ग परसेप्शन, एक गलत धारणा डेवलप कर लेती है। वो सोचने लगती है कि वो जो पत्ते गिर रहे हैं, पत्तों का गिरना और उसकी बीमारी का बढ़ना, इसके बीच में कोई रिलेशन था, ऐसा वो सोच लेती है। रिलेशन है ऐसा वो सोच लेती है और जिसके कारण वो सोचती है कि वो मरने जा रही है। सो such type of problem she had. Now answer of second part, what can cure her, the medicine or the willingness to live? We can say in such type of situation when a person has any type of negativity in his or her mind, then that person can't get proper treatment until that perception, until that negativity which he or she has dwelt in his mind, in his or her mind, until and unless that perception, that negativity will not go away from the mind of that person, till then no any treatment can't take place. तब तक कोई इलाज नहीं हो सकता जब तक एक व्यक्ति के मन में एक गलत धारणा, एक गलत सोच, एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी, तब तक व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता। सो सेम टाइप ऑफ सिचुएशन वाज देयर विद जॉन्सी। बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी द डॉक्टर told Sue by taking her aside that perhaps Jonsy had any tension in her mind due to which she had lost her willingness to live, and until and unless she would not regain that we can say willingness of living again, till then no treatment could possible. और डॉक्टर ने बोल भी दिया था शिव को जॉन्सी की बीमारी के बारे में कि जॉन्सी का इलाज संभव नहीं है जब तक उसके दिमाग में जो टेंशन है और वो ख़त्म नहीं होती, और जब तक वो जीने की चाहत
अपने मन में नहीं पैदा करती, तब तक उसका इलाज संभव नहीं है. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट मेडिसिन कांट डू एनी ट्रीटमेंट, ओनली द विलिंगनेस टू लिव कैन डू एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सच टाइप ऑफ wrong perception and such type of condition of negativity. So this was the answer of this question like that. इस तरह से ये इस क्वेश्चन का जवाब था. क्वेश्चन नंबर सेकंड which you are watching here, do you think the feeling of depression Jonsi has is common among the teenager? I tell you this question in Hindi version also, Hindi language also. क्या आप ये समझते हैं कि इस प्रकार की जो भावना है डिप्रेशन की, निराशा की, जो जॉन्सी में दिखाई देती है, वो एक कॉमन बात है टीनेजर के अंदर? तो सबसे पहले आई टेल यू द what is teenager. Teenager is a such type of child who has is just 11 to 15-16 years, यानी 11 से 15-16 साल के बच्चे को टीनेजर बोलते हैं. तो पूछा गया है कि क्या जॉन्सी के अंदर जो डिप्रेशन की भावना है, ऐसी भावना क्या आमतौर पर बच्चों में पैदा हो जाती है? टीनेजर में ऐसी भावना पनपने का दोष क्या आम बात है? यस, वी कैन से सच टाइप ऑफ सिचुएशन, such type of we can say depression may occur in teenage, and such type of situation may be seen in children having age 11 to 15, because in teenage the mind of a child, the mind of a teenager is not so developed that he could think right or wrong consequences of that thinking. इस अवस्था में बच्चे का दिमाग पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, जिसके कारण बच्चे को सही और गलत उस सोच के परिणामों के बारे में कोई पता नहीं होता. बच्चे में दिमाग पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता तब तक इस एज में, एंड ही स्टार्ट टू थिंक इन अ वेरी रॉन्ग वे, और वो गलत ढंग से सोचना शुरू कर देता है. हिज और हर इमेजिनेटिव पावर इज सो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही स्टार्ट टू थिंक, ही स्टार्ट टू इमेजिन इन रॉन्ग वे. वो गलत ढंग से कल्पना करना शुरू कर देता है, एंड दे डेवलप अ सच टाइप ऑफ इमेजिनेशन इन देयर माइंड एंड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू come out of it, to come out from that wrong perception, from that negativity, from that imagination which is done by that child in wrong way. जो कल्पना एक बच्चे के द्वारा गलत ढंग से की जाती है, जो धारणा एक बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है, गलत धारणा, वो नकारात्मक सोच एक बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है, उस सोच से बच्चा बाहर नहीं आ पाता, बिकॉज ऑफ इमेच्योर्ड माइंड, बिकॉज ऑफ इमेच्योर्ड कैपेसिटी ऑफ द mind of a child. Due to that reason, the child is unable to take right decision. उस अवस्था में बच्चा सही निर्णय नहीं ले पाता. So such type of feeling of depression is common among teenager. इस प्रकार की जो डिप्रेशन की भावना है, निराशा की भावना है, ये एक आम बात है टीनेजर में होना. इससे बाहर आने का एक ही रास्ता है,
that we should dwell positivity by diverting negative thought into positive way. And if any person has more negativity, then we can take help of any, we can say, psychologist who can give us proper suggestion. And in such type of situation, every day we should do little target and should try to achieve those targets, whatever the happiness we shall get after uh, receiving, after completing, after completion of those target, little target, whatever the happiness we shall get, with that happiness we may be able to avoid such type of negativity from our mind, and we shall come out from that situation of depression. जो निराशा की स्थिति है, उस निराशा की स्थिति से, डिप्रेशन की भावना से बाहर आ सकते हैं। क्या करके? हम छोटे छोटे क्या नाम है, डेवलप करें टारगेट हर रोज़, और उन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। जैसे ही वो टारगेट हम अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो हम क्या नाम है, उस टारगेट को पूरा करते, जितनी खुशी हमारे दिमाग में होगी, दिल में होगी, वो खुशी उस निराशा से कई गुना ज़्यादा होगी, और वो उस निराशा को वो खुशी हरा सकती है। सो इन दिस वे वी कैन try our best to come out from the situation of depression. बहरमन हैज़ अ ड्रीम, बहरमन के पास एक सपन है। व्हाट इज इट, ये कैसा सपन है? डज इट कम ट्रू, क्या ये सच्चा साबित होता है? बहरमन हैज़ अ ड्रीम टू मेक अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ। बहरमन का एक ही ड्रीम है, एक ही सपन है, एक मुख्य कलाकृति बनाना। ड्यूरिंग हिज लाइफ ही कुडंट बी एबल टू फुलफिल दैट डिजायर। अपने जीवन में वो इस इच्छा की पूर्ति नहीं कर सका, एक सुंदर सी कलाकृति नहीं बना सका। एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, वट एवर the problem Johnsy had, it was told to Behrman that Johnsy had a such type of wrong perception in her mind that with falling of last leaf she would die. This type of wrong perception which she had, the information about that wrong information was given to Behrman by Shu. शू के द्वारा वो सूचना बहरमन तक पहुंचाई गई कि जॉन्सी ने अपने दिमाग में एक रॉन्ग परसेप्शन पैदा कर लिया है, एक नेगेटिविटी को जन्म दे दिया है कि वो आखिरी पत्ते के गिरते ही मर जाएगी। सो बहरमन was a such type of person that he thought that his end was near as he was 60 years old. So due to that reason he thought that it would be better to make a leaf on the wall in that darkness during that night which was so cold and lot of heavy rain was going to happen on that night, during that night. So in this way Behrman made a such type of leaf to which Johnsy, being an artist, couldn't identify whether that leaf was real or the false one. Actually the leaf was painted leaf near the
आइवी क्रीपर, बट जॉन्सी जो एक क्या नाम है आर्टिस्ट थी, एक पेंटर थी, पेंटर होते हुए भी वो उस नकली पत्ते को, जो पेंट किया हुआ पत्ता था, उसको नहीं पहचान पाई। एंड द सेम लीफ could be able to save the life of John C. because that leaf gave lot of encouragement to John C. and it created a willingness to live in the mind of John C. और इसने जॉन सी के दिमाग में दोबारा से वही चाहत, कौन सी चाहत जो उसने खो दी थी कि वो अब जिंदा नहीं रह पाएगी, वही चाहत दोबारा से वो गेन कर पाई, दोबारा से प्राप्त कर पाई जिंदा रहने की। तो इस तरह से वो जो लीफ था, उस लीफ ने जॉन्सी के जीवन को बचाया। सो ड्यू टू दैट रीज़न शिव हैड टू से दैट इट वाज अ मास्टरपीस बिकॉज दैट लीफ सेव्ड द लाइफ ऑफ आवर फ्रेंड, क्योंकि उस पत्ते ने उसके सहेली के जीवन को बचा दिया था। अगर वो ऐसा ना करता देन हर फ्रेंड वुड हैव डाइड। अगर वो ऐसा ना करता तो हो सकता था उसकी फ्रेंड मर चुकी होती। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बर्गमन्स मास्टरपीस? व्हाट मेक्स यू से सो? बर्गमन की मास्टरपीस क्या है और क्या चीज़ शिव को ये कहने के लिए, उस पत्ते को, लास्ट लीफ को मास्टरपीस कहने के लिए क्या चीज़ उसे मजबूर करती है? बर्गमन masterpiece was there in form of last leaf. Berman was an artist having age 60 years. You can, we can say, rectify it. I think 60 years was the age of that person. इसको ठीक कर लें। बर्गमन जो 60 साल का बूढ़ा आर्टिस्ट है, उसने एक जो लीफ छापा था दीवार के ऊपर, दैट वाज बर्गमन्स मास्टरपीस बिकॉज दैट लीफ could give a message of encouragement, could develop encouragement in the mind and heart of John C. क्योंकि वो जो पत्ता बर्गमन ने रात के अंधेरे में उस दीवार पर बनाया, जिस पत्ते को जॉन सी एक कलाकार होते हुए भी, एक आर्टिस्ट होते हुए भी नहीं पहचान पाई, उसको एक असली पत्ता ही समझ लिया और उस पत्ते ने जॉन सी को क्या नाम है हिम्मत दी, हौसला दिया और वो उस पत्ते को देख देख कर जिंदा रह पाई और दोबारा से उसके मन में जिंदा रहने की चाहत जाग गई। सो ड्यू टू दैट रीज़न वी कैन से दैट इट वाज बर्गमन्स मास्टरपीस बिकॉज इन दैट प्रोसेस बर्गमन himself lost his life, but his dedication for John C. could be able to save her life. उसका जो समर्पण था जॉन सी के लिए, वो समर्पण की भावना किसको बचा पाई? जॉन सी को। जॉन सी अब किसी भी ढंग से वो अपने आप को ये समझती थी कि ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन उस पत्ते की प्रेजेंस ने, नकली पत्ते की प्रेजेंस ने उसको बचा लिया। तो ये थी बर्गमन की मास्टरपीस। व्हाट मेक्स यू से सो?
यानी कौन सी चीज़ शिव को ऐसा कहने के लिए उकसाती है। द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ आवर फ्रेंड फोर्सेस शिव टू से सो। उसकी सहेली की जिंदगी बचना, ये चीज़ शिव को फोर्स करती है ये कहने के लिए कि इट वाज बैरमन्स मास्टरपीस, कि ये बैरमन की मास्टरपीस थी। ये पत्ता, वट एवर द लीफ विच वॉज पेंटेड ऑन द वॉल नियर द आइवी क्रीपर, दैट वाज बैरमन्स मास्टरपीस। वो पत्ता वास्तव में बैरमन की मास्टरपीस था, बैरमन का की कलाकृति थी, जिसके कारण एक लड़की की लाइफ बच पाई। सो इन दिस वे वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन 5 है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने ढंग से किसी भी ढंग से दे सकते हैं, बट वट एवर द आंसर you will give, that should have some relationship with this question, with this statement, and that should be grammatically correct. इसमें कहा गया है कि क्या आप कभी डिप्रेस हुए हैं, डिप्रेशन में आप गए हैं, कभी निराशा महसूस की है। हाउ डिड यू ओवरकम, आपने इस निराशा को कैसे हराया। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। आप इसका जवाब जो है इसमें इस ढंग से दिया गया है कि आई हैड अ फ्रेंड हु वाज जूनियर टू मी, वन क्लास जूनियर टू मी, एक क्लास मेरे से जूनियर था। व्हेन वन डे आई वेंट टू मीट हिम, एट दैट टाइम आई मेट his mother firstly, then his mother told me that he had some problem, physical problem. पहले मैं उसकी मदर से मिला, उसने बताया कि उसको कुछ शारीरिक समस्या थी। he had a high fever, उसको तेज़ बुखार था। and when I met to my friend at that time, he told me, when I told him that because my friend was not coming to school, and then I told him that that's it for half yearly exam was announced by school management, was announced by examination committee. When I gave such type of news to him, then he told me that he didn't have his science copy in complete form, in complete sense. So due to that reason he was very worried. But I didn't lose hope. इस बात को सुनकर, डेट शीट के बारे में सुनकर वो बहुत ही उदास हो गया, लेकिन मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। डायरेक्टली आई वेंट to meet one of his classmates. I told him about that problem. That classmate of my friend gave his own notebook. I took his notebook and got the photocopy of those pages which were completed by him. मैं उसके घर गया, अपने फ्रेंड के क्लासमेट के घर, और वहाँ जाकर ये समस्या बताई। उसने तुरंत साइंस नोटबुक मेरे को दी और मैंने लेकर उस नोटबुक के पेजेस की फ़ोटोकॉपी प्राप्त की। एंड आई गेव दैट फ़ोटोकॉपी पेजेस टू माय फ्रेंड to get such type of photocopy pages. He became so happy and he could be able to come out from the situation of sorrow, और वो
दुख की समस्या से बाहर आने में किसी ढंग से कामयाब हो पाया। जैसे ही मैंने उसको वो नोट क्या नाम है पेजेस की फ़ोटोकॉपी दी तो वो खुशी से झूम उठा। एंड वॉट एवर द प्रॉब्लम ही हैड ड्यू टू हाई टेम्परेचर दैट आल्सो was treated by the doctor, and in this way he could be able to become good again physically. So in this way I helped one of my friend. इस तरह से मैंने एक अपने दोस्त की मदद की। इस तरह से आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो वर्डिंग जो आइडिया मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है वही आपका हो, यानी आपके व्यूज़ आपका आइडिया अलग भी हो सकता है, लेकिन जो आइडिया आप लिखेंगे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, इससे मैच करता हो, और दूसरा वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। So in this way we can answer this question. So I think you will write down this question answer and will also learn. It will be yours homework. Okay, thank you.